Dear students, today our topic is archibacteria. As you will be fully aware about the fact that archibacteria has been derived from a Greek word arche. Arche means ancient, and bact means rot. That is, these are the ancient bacteria. Archibacteria, they are also called as ancient bacteria. Ancient bacteria or archibacteria are a primitive group, oldest group or primitive group of bacteria. They are very much primitive. Shabash. They are also called as oldest living fossils. They have been also called as the oldest living fossils. The archibacteria are unusual monorems. That is, they differ from bacteria. They differ from cyanobacteria. So they are also called as unusual monorems. They show deviation from bacteria and cyanobacteria. That is why they are called as unusual monorems. Now, the characteristics of archibacteria or ancient bacteria. The ancient bacteria or archibacteria differ from bacteria and cyanobacteria in a number of characteristics, and some of the characteristics of these archibacteria are as: first, unique cell wall. Archibacteria possess a cell wall which differs from bacteria and cyanobacteria. बेटा हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में mostly the cell wall is made up of peptidoglycan, polysaccharides और proteins. लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है, आर्चिबैक्टीरिया लैक पेप्टिडोग्लाइकान, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकान प्रेजेंट नहीं होता है. ऑल आर्चिबैक्टीरिया, सभी जो आर्चिबैक्टीरिया है एक्सेप्ट मिथेनोसार्किना. मिथेनोसार्किना इज एन आर्चिबैक्टीरिया. बेटा इस मिथेनोसार्किना बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, हेटेरोजीनियस पॉलीसैकेराइड्स. इसमें पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं और इन पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, ग्लूकोसमीन है, न्यूट्रल शुगर्स है और यूरानिक एसिड. लेकिन जो सभी आर्चिबैक्टीरिया है एक्सेप्ट मिथेनोसार्किना, all archibacteria possess protein subunits. They possess protein subunits and non-cellulosic polysaccharides. That is, the archibacteria lack peptidoglycan and they possess protein subunits and non-cellulosic polysaccharides. First, that is, they differ from other bacteria and cyanobacteria in cell wall. They do not, in their cell wall, do not possess any peptidoglycan. Second is the unique plasma membrane. Plasma membrane, lipids are perhaps the most invariant or unique aspect of archibacteria. बेटा archibacteria जो है उनके जो membrane lipids है वो differ होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में. इसके बावजूद या इसके बरक्स यहाँ पे आर्चिबैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, दे कंटेन आइसोपेरिनॉइड एंड आइसोप्रेनाइल ग्लिसरॉल ईथर, टू यूनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट, आइसोपेरिनॉइड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 2 or more units of hydrocarbons. The organic compounds with 2 or more units of hydrocarbons. Second, the unique aspect or the unique substance which they possess is the isoprenyl glycerol ether. It is the hydrocarbon in which the side chains are linked with glycerol. Hydrocarbons which are linked with glycerol via ether, with the help of ether. That is, the hydrocarbon which is linked with glycerol and with the help of ether. It is called as isoprenyl. That is, their plasma membrane, उनका जो plasma membrane होता है उसमें
दो सबस्टेंसेस पाए जाते हैं और वो क्या है, आइसोपेरिनॉइड एंड आइसोप्रेनाइल ग्लिसरॉल ईथर, या आइसोपेरिनॉइड एंड आइसोप्रेनाइल ग्लिसरॉल। थर्ड, बेटा जो थर्ड पॉइंट है वो है यूनिक आरएनए न्यूक्लियोटाइड और यूनिक आरएनए। बेटा जो आरएनए होता है बैक्टीरिया या यूकेरियोट्स में, वहां पे एक यूनिक एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। जो यूनिक एंजाइम कंसिडर किया जाता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। बेटा इस आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, इसमें बहुत सारे सब यूनिट्स हैं। और आर्ची बैक्टीरिया जो है, आर्ची बैक्टीरिया में इसके 10 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 10 सब यूनिट्स का बना होता है। लेकिन बेटा अगर हम देखेंगे जो बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा, देयर आर ओनली 4 सब यूनिट्स। वहां पे सिर्फ 4 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। लेकिन यहां पे क्या है, आर्ची बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 10 सब यूनिट्स का बना होता है। लेकिन ट्रू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा में सिर्फ 4 सब यूनिट्स का बना होता है ये आरएनए पॉलीमरेज। ये डिफरेंस है। और बेटा ये जो आर्ची बैक्टीरिया है, दे आल्सो द बेस थायमीन इज एब्सेंट। यहां पे थायमीन एब्सेंट होता है। बेटा जब हम देखते हैं ना, एडेनिन आपने सुना होगा, बेस पेयर्स विद थायमीन, ये बेसिस होते हैं। एंड गानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन, ये बेस पेयरिंग होती है डीएनए और आरएनए में। लेकिन यहां पे क्या है, ये जो आर्ची बैक्टीरिया है, आर्ची बैक्टीरिया में ये थायमीन एब्सेंट होता है। यहां पे थायमीन बेस प्रेजेंट नहीं होती है, बट इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गा एंड बैक्टीरिया। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरिया है वहां पे थायमीन प्रेजेंट है। तो इसका जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमीन नहीं होता है। और दूसरा, इसका जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 10 सब यूनिट्स का बना होता है। और फोर्थ पॉइंट जो है बेटा वो है यूनिक मेटाबॉलिज्म। यूनिक मेटाबॉलिज्म, आर्ची बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो है वो भी डिफरेंट है। दे लैक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवेज। जो बेटा आपने सुना होगा C3 साइकिल, C4 साइकिल या C2 साइकिल, वहां पे कार्बन फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वो डिफर होती है किसमें, इस आर्ची बैक्टीरिया में। आर्ची बैक्टीरिया में इस पैटर्न की फिक्सेशन नहीं होती है जिस तरह हम देखते हैं यूकेरियोट्स में। फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, C2 साइकिल होता है, C3 साइकिल या C4 साइकिल, जिस तरह से वहां यूकेरियोट्स में पाया जाता है। जिस तरह से हम देखते हैं इन हायर प्लांट्स में कार्बन फिक्सेशन जिस तरह से होती है, इस तरह से कार्बन फिक्सेशन नहीं होती है इसमें, आर्ची बैक्टीरिया में या एंशिएंट बैक्टीरिया में। ये डिफर होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवेज में। और बेटा जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट है, वो है दे आल्सो शो डिविएशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिस तरह नॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन बेटा ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पे हायर प्लांट्स या हायर ऑर्गेनिज्म में जिस तरह हम देखते हैं कि वहां पे होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ पे इस तरह से नहीं होती है। ये डिविएशन दिखाता है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, कि इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट डीएनए to RNA and then from RNA to proteins. RNA to proteins. डीएनए से पहले आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन बेटा ये नॉर्मल है, डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए के बाद प्रोटीन्स बनते हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज डीएनए टू आरएनए।
Formation of RNA from DNA is called as transcription, and formation of proteins from RNA is called as translation. But the unique mechanism जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहाँ पे वेरिएशन होती है. इस तरह से नहीं बनते हैं प्रोटीन्स जिस तरह से हम हायर प्लांट्स या सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाया जाता है. दैट इज ऑल. थैंक्स.